السلام علیکم، آج 3 بجے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں سعدیہ خواص اور میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ذکر کریں گے خیبر پختونخوا کا، جہاں بلدیاتی الیکشن میں 17 اضلاع میں جے یو آئی نے میدان مار لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف دوسرے نمبر پر ہے، جبکہ آزاد امیدوار 13 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق صوبے کی 64 تحصیلوں میں چیئرمین شپ کے لیے جے یو آئی کے 19 امیدوار کامیاب ہو گئے۔ پی ٹی آئی 15 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی، 13 آزاد امیدوار کامیاب ہوئے، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی 8 نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ جماعت اسلامی نے 3، تحریک اصلاح پاکستان اور مسلم لیگ نون کو 2 تحصیلوں میں برتری حاصل ہے۔ پیپلز پارٹی صرف 1 تحصیل میں برتری حاصل کر سکی۔ میئر کے الیکشن میں مردان میں اے این پی اور کوہاٹ میں جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے امیدواروں نے میدان مار لیا ہے، جبکہ دیگر 2 شہروں پشاور اور بنوں میں بھی پی ٹی آئی پیچھے ہے۔ پشاور سٹی کی نشست سب سے اہم سمجھی جا رہی ہے، یہاں بھی جے یو آئی کے امیدوار زبیر علی کو 6000 ووٹوں کی برتری حاصل ہے۔ بلدیاتی الیکشن میں پی ٹی آئی کی ممکنہ شکست کی وجہ کیا رہی؟ وزراء کے متضاد بیانات سامنے آ گئے۔ شبلی فراز نے ممکنہ شکست کا ملبہ پارٹی پر ہی ڈال دیا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء نے بلدیاتی الیکشن میں شکست کا ذمہ دار مہنگائی کو قرار دیا، جبکہ فواد چودھری بولے کہ حکومت نے شفاف انتخابات منعقد کرائے۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی الیکشن کے نتائج سے حکومتی ایوانوں میں مایوسی، عوام کی مکمل حمایت کے دعووں میں کمی آ گئی۔ وفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا پی ٹی آئی کا مقابلہ پی ٹی آئی سے تھا، دیکھنا ہوگا کہ ہماری حکمت عملی میں کیا کمزوری تھی۔ پارٹی ٹکٹ کس کو ملا اس کے مقابلے میں اور کھڑے ہو گئے، تو اگر یہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی نہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ ہم آسانی سے 14 میں لے سکتے تھے۔ الحمدللہ ہماری پرفارمنس ابھی نتائج آ بھی رہے ہیں، 10-12 تو انشاءاللہ ہماری ہے ہی ہیں، جو کہ برا نتیجہ نہیں ہے، بہت اچھا۔ پی ٹی آئی وزراء نے کہا عوام مہنگائی بڑھنے سے پریشان ہے۔ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہو رہی ہے، ہم تو کسی قسم کے ہم نے تو ثابت کیا ہے۔ دیکھیے مہنگائی ہے، بالکل ہے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی ہمارے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے۔ فواد چودھری نے ٹویٹ میں لکھا وزیر اعظم آج بھی عوام کے لیے سوچتے ہیں، ورنہ کتنا آسان ہے وزیر اعلیٰ کی صورت میں ایک ڈکٹیٹر رکھو اور کام چلاؤ، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی روایت ہے۔ ادھر کے پی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے پی ٹی آئی ممبران پر بکنے کا الزام عائد کر دیا، کہا پارٹی اراکین شکست کے ذمہ دار ہیں، متھرا میں ان کے بھائی کو ہروا دیا گیا۔ اراکین اسمبلی نے جے یو آئی امیدوار کی حمایت کی، عمران خان نوٹس لیں اور کارروائی کریں۔ پشاور کی وجہ تو میں کم بتاؤں گا، لیکن میں اپنے حلقے کی شکست کی وجہ بتاؤں گا۔ میرا اپنا ایم این اے نور عالم خان جو اوپنلی جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ اپنے بردر ان لا کو اوپنلی سپورٹ کر رہا تھا، میرا ایڈجسنٹ ایم پی اے ارباب وسیم حیات آزاد امیدوار کو اوپن سپورٹ کر رہا تھا، تو جو بیٹ میں الیکشن لڑے جن کو بیٹ نے عزت دی ہے وہ کچھ روپوں کے لیے اپنے مقاصد کے لیے وہ پک گئے ہیں اور انہوں نے پارٹی کو سپورٹ نہیں کیا۔ دوسری طرف شہرام ترکئی نے پارٹی ٹکٹ کی غلط تقسیم کو شکست کی وجہ قرار دیا۔ صوبائی وزیر تعلیم بولے نچلی سطح پر امیدواروں کو ٹکٹ ہی نہیں دیے گئے، اسی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا، غلطیوں کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور ہمارا مقصد یہ تھا کہ نیچے جو پارٹی ہے وہ ڈیوائیڈ نہیں ہوگی، تو ہم نے نیچے لیول پہ ہم نے ٹکٹس نہیں دیے، تو اس کی وجہ سے ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز رہا۔ اور میری ذاتی رائے اور میری جو انالیسز ہے اور اس کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں مین وجہ یہ تھی۔ ادروائز ہمارا جو ہے جو ہمارے اوپوننٹس ہیں ان کے اگر آپ ووٹ بینک اور چیزیں دیکھ لیں تو انہوں نے انکریز نہیں، وہ ڈیکریز ہوئے ہیں، لیکن ہمارا جو ہے ہمارا ووٹ ٹکٹ نہ دینا جو ہے وہ مین وجہ جو ایک مین وجہ ہے وہ ہے، کیونکہ ایک بیٹ تھا، ایک پنکھا تھا، ایک کوئی اور تھا، تو ایک ہی پارٹی کے 4 نشان جب آپ کینڈیڈیٹس کو دیں گے تو وہ ہماری ایک غلطی ہے اور اس کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی الیکشن میں متعدد پرتشدد واقعات بھی رپورٹ ہوئے۔ ان واقعات نے جمہوری روایات اور اختلاف رائے کے حق کو پامال کیا۔
देखते हैं ये रिपोर्ट। मुल्क में इलेक्शन में तशद्दुद की रिवायत खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में भी बरकरार रही। फायरिंग, लड़ाई झगड़े ने जमहूरी रिवायात और इख्तिलाफ के हक को पामाल कर दिया। पुरतशद्दुद वाक़यात में 6 अफराद जान से गए, दर्जनों जख्मी हुए, रॉकेट तक फायर हो गए। सिर्फ यही नहीं, पोलिंग स्टेशन लूट लिए गए, वोटों को सड़क पर जला डाला। बात यहीं तक रहती तो फिर भी गवारा थी। हद तो ये हुई कि खवातीन को वोट डालने से रोकने के लिए मुआहदे भी किए गए। अपने नुमाइंदे खुद मुंतखब करने का हक हम अपने हाथ से दूसरों की झोली में डाल देते हैं और बाद में इल्जाम सिस्टम पर लगा देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए वोटिंग जारी है। अब तक 100 से ज़ायद अरकान असेंबली वोट कास्ट कर चुके हैं। इसी बारे में बात करेंगे, वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शहाबुद्दीन, अपडेट कीजिएगा। सादिया गौस, ये खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में इस वक्त सेनेट के खाली नशिस्त के लिए इंतखाबात हो रहे हैं और अब तक यहाँ खैबर पख्तूनख्वा की ईवान में जो 145 अरकान असम्बली है, उनमें से 118 अरकान असम्बली ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल कर चुके हैं और तकरीबन 27 अरकान अभी रह रहे हैं। 4 बजे तक टाइम है पोलिंग का, आखिरी टाइम, तो 4 बजे तक जो अरकान असम्बली यहाँ असम्बली के अहाते में पहुंचेंगे तो वो अपने हक़ राय दही इस्तेमाल करने में कामयाब होंगे। लेकिन ये कल बल्दियाती इंतखाबात की वजह से जो दूर दराज के इलाके है, DI खान हो गया, वहां से कुछ अरकान असम्बली अपनी अभी पहुंचे नहीं है, लेकिन यही तवक्को की जाती है कि वो पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ सेनेट का जो खाली नशिस्त है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत तरीन, अवामी नेशनल पार्टी के शौकत अमीरजादा और JUI के जाहिर शाह है और पीपल्स पार्टी की मोहम्मद सईद है। लेकिन यहाँ चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्लियर मेजॉरिटी हासिल है और नशिस्त भी एक है, तो बड़ी आसानी से उनका उम्मीदवार कामयाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली की तादाद 94 यानी 94 है और फिर उनके साथ अगर इत्तेहादी मिला दे तो वो 101 बनते हैं। तो 145 के अवान में 100। दूसरी जानिब इमरान खान का ATM उनकी अपनी जात है, वो अपने घर के बिजली के बिल खुद जमा कराते हैं। मरियम औरंगजेब को गुलामी का शौक है। इमरान खान के बूट के तस्मे ने आपके गले में फंदा डाल दिया है। शहबाज गिल की मरियम औरंगजेब पर तनकीद, मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मरियम औरंगजेब साहिबा को वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए। ATM की बात बड़ी करते हैं कि मुंह में ATM बहुत है। इमरान खान का ATM तो कोई नहीं, उसका ATM तो जो है वो उसकी अपनी जात है। इमरान खान घर की बिजली, गैस, हर चीज के बिल अपनी जेब से देता, बिल मौजूद है जमा करवाए हुए। आपने लिख के दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि कतरी जो है वो हमारे ATM है, आपने ये लिख के माना था। मरियम औरंगजेब साहबा को क्योंकि शौक है गुलामी का, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान के बूट के अंदर जो तस्मा है वो भी उनका अपना नहीं है। इमरान खान की तो हर चीज उनकी अपनी है, लेकिन ये बात सच है कि आप में से किसी का कद भी इमरान खान के बूट के तस्मे से ज्यादा नहीं है। आपको वो कपड़े नजर नहीं आते जो इंडिया से खरीदे गए। कैशियर 10,000 ते किवें रखते ने? वो भैड़िओ, सानू भी दसो, सानू तो ड्राइवर नहीं लभदा 20-22,000 तो घट। तुहानू कैशियर जेड़ा 10,000 ते लभ जांदा है, किहड़ा कैशियर है? PTI रहनुमाओं की जबान दराजी सबके सामने है। किसी खातून को तस्मे से बांधने की बात अफसोसनाक है। ये लोग किसी को तस्मे से क्या बांधेंगे? इन्हें तो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने जूते तले मसल दिया। शहबाज गिल पर लीगी रहनुमा उज़मा बुखारी की शदीद तनकीद। कहा, शहबाज गिल साहब इतना ना गिरें कि अपनी नजरों से उठना भी मुश्किल हो जाए। जितना बड़ा बदतमीज, जितना बड़ा घटिया गुफ्तगू करने वाला शख्स, वो इस नए पाकिस्तान में उतने बड़े ओहदे पे आपको नजर आएगा। आलम यह है कि आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जूते के नीचे रख रही है और आप कह रहे हैं आप फलाने को तस्मे से बांधेंगे। कल रात को आपको KPK के अंदर KPK की आवाम ने जूते के नीचे मसला है। ये जो जनाजा उठा है KPK से तब्दीली का,
इंशाअल्लाह ताला इसकी तदफीन पंजाब में होगी। शहबाज गिल साहब उतना गिरे कि आपको दोबारा उठते वक्त आसानी हो सके। शहबाज गिल साहब आपके बारे में, आपके लीडर के बारे में कौन सी बातें हैं जो पाकिस्तान की आवाम को नहीं पता? अल्लाह का शुक्र है हमारी शादियां भी खुले में होती हैं, हमारे फंक्शन भी खुले में होते हैं, हमारे रिश्ते भी सबके सामने होते हैं। ना हम रिश्ते छुपाने वालों में से हैं, ना हम शादियां छुपाने वालों में से हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं नाअहल सरकार फिर बिजली की कीमत बढ़ा रही है। वफाकी हुकूमत को आवाम का जरा बराबर भी एहसास नहीं। बिजली महंगी करने से महंगाई का नया सैलाब आएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा हुकूमतें सिर्फ वादों और दावों पर नहीं चलती। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के ऊपर महंगाई का बम मारने का फैसला किया है कि बिजली के नरखों में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। जैसे ही नेपरा ये फैसला करेगा, एक बार फिर महंगाई का तूफान पाकिस्तान की आवाम को जकड़ लेगा। मैं इमरान खान साहब की तवज्जो इस मामले पर दिलाना चाहूंगा और ये डिमांड करना चाहूंगा कि फौरी तौर पर ये जो 4 रुपए 33 पैसे बिजली के फी यूनिट इजाफे का फैसला किया गया है, इसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। खुदारा अपनी बातों में एहसास से निकल के अपने काम में एहसास पैदा कीजिए। अगर ये बिजली की कीमतों में इस तरीके से इजाफा हुआ तो उसका बड़ा नुकसान पाकिस्तान की आवाम को होगा। गुजरांवाला में ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। किरायों में इजाफे से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज के नुमाइंदे राजा हबीब से। जी राजा हबीब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बावजूद जहां पर ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुदसाख्ता तौर पर इजाफा कर दिया, यहां पर इंटरनल तौर पर चलने वाली ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल रिक्शा के जो रेट हैं वो 20 रुपए से बढ़ाकर फी स्टॉप जो है वो 30 रुपए कर दिए गए हैं। इसी तरह अगर यहाँ जिला के अंदर गुजरांवाला से कामोगी, गुजरांवाला से वजीराबाद, गुजरांवाला से नौशहरा विरका के किरायों का जायजा लें तो ट्रांसपोर्टर्स ने 20 से 30 रुपए फी मुसाफर किराया जो है वो बढ़ाया है। अगर बैनुल अजलाही और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो वहां पर भी 40 से 50 रुपए फी मुसाफर जो है वो ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साता तौर पर किरायों में इजाफा कर दिया। यहाँ पर जो मुसाफिर हैं वो चीख रहे हैं, दुहाइयां दे रहे हैं, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है वो चुप गुमसुम खामोश है। जी पीपल्स पार्टी रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं मुल्क में महंगाई बुलंदियों पर पहुंचा दी गई है। हुकूमत ने आवाम का जीना तो भर कर दिया है। मुल्क में मुसलसल बेरोजगारी भी बढ़ रही है। हुकूमती पॉलिसी के बायस किसान सरापा एहतजाज हैं। पीपल्स पार्टी किसान भाइयों के साथ खड़ी है। इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम पीटीआई के साथ नहीं है, वो तो बहुत मायूस। ये वो हालात हैं जो बड़े तशवीशनाक। इससे पहले इस तरह की कोई कैफियत नहीं हुई। इनके पास कोई ज्यादा मेजोरिटी नहीं है, बड़ी थिन मेजोरिटी है पंजाब में भी और मरकज में। हम तो ये चाहते थे कि इनके खिलाफ जो है बात में एतमाद लेकर आया जाए। और अब जो कि आप देखें कि तमाम पाकिस्तान का हर तबका जो है सरापा एहतजाज है, और वो खाए वो मजदूर हो, खाए वो किसान हो, खाए वो तालिब इल्म हो, और खाए वो हॉस्पिटल्स के महकमे के लोग हों, खाए वो सरकारी महकमों के लोग हों जिनको निकाल दिया गया है। और तो अब मैं समझता हूँ कि इस ऑप्शन को इस्तेमाल होना चाहिए। कराची में 17% नालों पर तजावुजात मौजूद हैं। हम इंतजार करें कि अगली बिल्डिंग कब गिरेगी और फिर ये वज़रा अपनी सियासत चमकाएंगे। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीपल्स पार्टी को लोगों के मरने से कोई गर्ज नहीं है। कराची शहर के अंदर जो 70% अंदरूनी नाले हैं, उन 70% अंदरूनी नालों के ऊपर कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन हुई भी है। अब इसका मतलब ये है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अब एक और बिल्डिंग जो है वो कब गिरेगी और 20-25 लोग जो हैं वो कब इंतकाल कर जाएंगे। उसके बाद वहां पर जो सिंध हुकूमत के मिनिस्टर्स जाएंगे, जो इंतकाल कर जाएंगे, उन लोगों के घरों के ऊपर आएंगे वो, और उनके घरों के ऊपर आने के बाद वहां पर आके दुआएं करेंगे, अफसोस करेंगे और घर चले जाएंगे। उन्होंने आज तक ऐसी इल्लीगल बिल्डिंग्स के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लिया जो कि नालों के ऊपर बनी है? उसकी वजह यह है कि ये सिर्फ माल बनाने में मसरूफ है, ये पैसा इकट्ठा करने के अंदर मसरूफ है। सिंध हुकूमत ने, बिलावल जरदारी ने, आसिफ अली जरदारी ने, मुराद अली शाह ने, ये अपने साए तले तमाम माफियाज रखे हुए। हर इदारा माल इकट्ठा कर रहे हैं और माल इकट्ठा करके बिलावल हाउस पहुंचा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात से बिल्कुल भी गर्ज नहीं है कि सूबे सिंध में कितने लोग मरे। कराची के इलाके शेरशाह पराचा चौक पर गैस धमाके में तबाहाल इमारत का मलबा उठाया जा रहा है। जुनेद जावेद की रिपोर्ट देखते हैं।
शेरशाह प्राचा चौक पर 2 रोज कबल होने वाले धमाके के मुकाम पर मलबा उठाने का काम ताहाल जारी। हैवी मशीनरी की मदद से मलबा उठाया जा रहा है। असिस्टेंट कमिश्नर अम्मार का कहना है कि मलबे से तमाम अफराद को निकाला जा चुका है। नाले पर तामीरात की कैसे इजाजत दी गई, तहकीकात कर रहे हैं। अभी तक जो स्टेटस है वो 17 डिसीज बॉडीज का है। उसके अलावा क्योंकि हमने वेट किया इधर लवाहिकीन का भी और उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया, हमने बैंक की तरफ से भी कंफर्म किया, तो अभी तक हमारी तरफ से कोई लापता या मिसिंग हमें रिपोर्ट। इन्होंने हमें कुछ चलान शो करवाए थे लेकिन अभी उनकी वेरिफिकेशन और सब कुछ अभी उस पर इंक्वायरी हो रही है। शहरियों ने कहा कि रिश्वत के एवज गैर कानूनी तामीरात करके मुसलसल इंसानी जानों से खेला जा रहा है। पहले इंतजामिया परमिशन देती क्यों और फिर बैंक कैसे बन गया, सबसे बड़ी बात ये इनका गफलत है। गवर्नमेंट इसके ऊपर गौर नहीं करता है। ये इसको होना चाहिए सारा नाले माले साफ कर दे। तकरीबन कोई 60-70 साल हो गया इसको बने हुए। नाले के ऊपर तो पहले बात तो ये है कि सैंड लिमिटेड ने इसको दिया, सैंड लिमिटेड को अलाउ करना ही नहीं चाहिए था। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम होता, आज से 6 महीने पहले या साल पहले किया होता था, ये जानी नुकसान ना होता। इंतजामिया के मुताबिक नाले पर बनी इमारत मिस्मार करने के लिए आज से काम शुरू होगा। जुनैद जावेद, आज न्यूज, कराची। और अभी आपको बताएं, पेशावर के इलाके फकीराबाद में पुलिस और सीटीडी का मुश्तरका ऑपरेशन, 3 मुबैना दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सरकारी जराये के मुताबिक तीनों दहशतगर्द सिख कत्ल केस समेत पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस थे। हलाक मुलजिम सुलेमान का ताल्लुक जिला बाजोड़ से बताया जा रहा है। दीगर 2 की शनाख्त का अमल जारी है। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ। उधर सवाबी में पुलिस की जेर हिरासत नौजवान की हलाकत, लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर जहांगीरा रोड को बंद कर दिया है। लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया कि अमजद पुलिस तशद्दुद से जाम हक हुआ, जबकि पुलिस का कहना है कि मकतूल अमजद ने लॉकअप में खुद को फांसी लगाई। इसे चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। सवाबी में पुलिस की जेर हिरासत नौजवान की हलाकत, लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर जहांगीरा रोड को बंद कर दिया है और लवाहिकीन ने इल्जाम आयद किया है कि अमजद पुलिस तशद्दुद से जाम हक हुआ, जबकि पुलिस का बताना है कि मकतूल अमजद ने लॉकअप में खुद को फांसी लगाई। इसे चोरी के केस में गिरफ्तार किया गया था। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जांबहक वासिफ रियास ड्यूटी से वापस आ रहा था कि पुलिस ने कत्ल कर दिया। बेकरार मां का कहना है कि पुलिस ने जिंदगी भर का दुख दे दिया। फैजान जलीस की रिपोर्ट। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जाबहक वासिफ रियास के अहले खाना गम से निढाल हैं। मैं टीचर से हूँ, मैं टीचर हूँ, मगर अब मेरे ताकत नहीं हो रही दिल में। वासिफ की बेकरार वालदा का कहना है कि पुलिस ने उनसे जिगर गोशा छीन लिया। मैं तो तोड़ दिया, मेरे दिल के टुकड़े को तोड़ दिया। ले गए बेटा, मैं क्या करूँ? मैं तुमसे खुद बेवा थी, मेरे सहारा है मेरे बच्चे, तो मैं क्या करूँगी अब? वासिफ के भाई का कहना है पुलिस ने भाई की लाश को अस्पताल मुंतकिल करने की बजाय कई घंटे तक थाने में रखा। मैंने SHO को ये कहा कि इनको आप जिना लेके चले, एम्बुलेंस मंगवा लें। हालांकि यहाँ से बुरुख चौरंगी पे छीपा का जो है एम्बुलेंस से खड़ी होती है, मगर उन्होंने मोबाइल में डाला नहीं, हम जिना मोबाइल में लेके जा रहे हैं। उसके बाद वो उसको थाने में लेके गए हैं। वहां पे मेरे भाई की डेड बॉडी की उन्होंने बेहुरमती ही की है मोबाइल में रखते, और 4 घंटे तक हमें जो है थाने के बाहर रखा गया। वासिफ के कत्ल के इल्जाम में 3 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ रोज कबल औरंगी टाउन में 12वीं जमात के तालिब इल्म अरसलान महसूद को भी पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया गया था। वासिफ की तदफीन कर दी गई है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह जाली पुलिस मुकाबलों में लोग मरते रहेंगे और उन्हें रोकने के लिए कोई मजबूत निजाम नहीं बनाया जाएगा? लाहौर के इलाके कोट लखपत की ऑयल फैक्ट्री के हवाले से आपको बताएं कि जहां पर गत्ता यूनिट में आतिश ज़दगी का वाकया पेश आया है। रेस्क्यू 1122 के फायर फाइटर्स ने 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। गत्ता मटीरियल मौजूद होने के बाइस आग ने शिद्दत इख्तियार की। हादसे में कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ है।
अभी आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको लिए चलते हैं। नाअहली और करप्शन जो है उसका एक बहुत बड़ा आंसर है। बाकी जो मईशत का हाल इस हुकूमत ने किया है, जहां डॉलर 73% महंगा हो चुका है और बिजली डॉलरों में लगती है, तो वहां पर आज अवाम इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन का खमियाजा भुगत रहे हैं। और इसका आपने देख लिया कि कल केपी के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो हशर हुआ है, हुकूमत के उम्मीदवारों का, और एक हुकूमत जहां पर पुलिस भी इसी महकमे की हो, इंतजामिया भी हो, वहां पर धांधली की कोशिश की गई वो भी आपके सामने है। और जो उस इलाके के अवाम ने उनके वजीरों के साथ हशर किया, उसकी वीडियोस भी आज आम हैं। ये आज हकाइक हैं इस मुल्क के। अब मैं सिर्फ गुजारिश इतनी करूंगा कि हमने नए प्लांट लगाए जिनकी जो फ्यूल कॉस्ट है, यानी जो वो एलएनजी इस्तेमाल करते हैं या कोल इस्तेमाल करते हैं, वो फर्नेस ऑयल के जो प्लांट लगे हैं पाकिस्तान में, उनसे उनका एक फर्क है, एक सेविंग्स है उसके अंदर। और वो डिपेंड करता है कि क्या कीमत पे आप एलएनजी लेते हैं या कोल लेते हैं या ब्रेंड की क्या कीमत है। वो फर्क चला जाता है 6 से 11 रुपए तक। जो ये तमाम जो 9000 मेगावाट के प्लांट लगे हैं एलएनजी और कोल के, इनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है वो औसतन 4.5 रुपए पे, यानी जो ये प्लांट सेविंग्स देते हैं फ्यूल में, वो उनकी जो कैपेसिटी पेमेंट है उसको बखूबी पूरा करता है और आपको सेविंग्स भी देता है। ये कई 100 अरब रुपए की सालाना सेविंग है। और मैं ये भी गुजारिश करता चलूं कि जो एलएनजी के प्लांट लगे हैं, इनके मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, इनका कोई और बाहर का मालिक नहीं है। ये पाकिस्तान की हुकूमत ने अपने पैसों से लगाए हैं। और आज जब ये बिकेंगे, अगर आप बेचना चाहें, जो इस हुकूमत का दावा है, तो आपको अरबों डॉलर इन प्लांट से मिलेंगे। यानी आपने जो कुछ लगाया था ये आपका सासा है, और आपको भी जो फायदे वो दे रहा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये आपका सासा भी बनता जा रहा है। जो कोल के 3 प्लांट लगे हैं, ये सीपैक के तहत लगे हैं, चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। और मुझे बड़ा अफसोस है कि आज एक मनसूबाबंदी के तहत सीपैक को भी बदनाम किया जा रहा है। और ये जो 3 पावर प्लांट लगे हैं, ये कहा जाता है कि बड़े महंगे लग गए हैं और ये पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। मेरा किसी भी शख्स से मेरा चैलेंज है, बात बड़ी वाज़ेह है, ये प्लांट्स लगे हैं। पाकिस्तान में कोई बड़ा कोल का प्लांट नहीं था, पहले कोल के प्लांट्स थे। टैरिफ जो है जिस पर ये प्लांट लगते हैं, ये नेपरा बनाता है, ये हम बनाते हैं, ये चीन नहीं बनाता, ये हम बनाते हैं। हम कहते हैं कि जनाब मैं इतने पैसे दूंगा और आप आकर ये प्लांट्स लगाएं। ये टैरिफ पड़ा रहा, पाकिस्तान में कोई नहीं आया। 6 साल ये टैरिफ हम लेकर फिरते रहे पूरी दुनिया में, कोई कोल प्लांट लगाने नहीं आया। सीपैक के तहत 3 प्लांट लगे, रिकॉर्ड अरसे में मुकम्मल हुए। और मैं ओपनली कहता हूं कि ये 3 प्लांट जो हैं 4000 मेगावाट के,
یہ آج پاکستان کی سستی ترین بجلی ہے، اور یہ 3 پلانٹ جو ہیں جو ہمارے پرانے پلانٹس کی نسبت آپ کو بچت دے رہے ہیں ہر سال، وہ کم از کم 2030 تک سی پیک کے اندر جتنے بھی منصوبے پاکستان میں لگے ہیں ان سب کی پیمنٹ کے لیے کافی ہے وہ بچت۔ ہمیں اپنے دوست ممالک پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے۔ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ جہاں پر دنیا میں کوئی انویسٹ کرنے کو تیار نہیں تھا، چین نے آ کر انویسٹ کیا، ہمیں بچت دی، اور آج ہم کیچڑ اچھالتے ہیں۔ اور 2030 تک جتنی پیمنٹس بھی ڈیو ہیں سی پیک کے ہر منصوبے کے تحت، وہ ان 3 پلانٹس کی بچت آپ کو دے رہی ہے۔ یہ آج بجلی کے حقائق ہیں۔ تو میری ان وزراء سے، اب سیکرٹری صاحب تو ہر 6 مہینے بعد سیکرٹری بھی بدل جاتا ہے، وزیر بھی بدل جاتا ہے، تو کتنی تعلیم بالغاں یہاں ہوگی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو بجلی کی قیمت کم سطح پر دے سکتے ہیں۔ اس کے طریقے ہیں۔ سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پرانے پلانٹ ہیں جن کو آج آپ فرنس آئل امپورٹ کر کے چلا رہے ہیں، کیوں چلا رہے ہیں سمجھ سے باہر ہے، ان پلانٹس کو بند کریں۔ یہ اس ملک کی مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد حقان عباسی اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی نااہلی کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ ماضی کی حکومتوں نے اچھے اقدامات بھی کیے ہیں، لیکن اس پر آج کیچڑ اچھالی جاتی ہے۔ خبروں کا سلسلہ جاری ہے، یا وقت ہے ایک بریک کا؟ آج کے ساتھ